नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विजडम ऑफ सोलोमन, द ईगो asserts from Solomon speaks channel material. In many cases, in these planes of energy, ego represents identity. It gives it a separateness, a form which is essential to function in this plane. We have difficulty understanding the concept that we are all one, and we understood that we are all one, there would not be the lessons that need to be experienced. The ego gives us the identity to experience the lesson in terms of very specific viewpoint. It is as if we look at the situation through a very specific window. That frame in the window is our ego. It gives us the form to look through from a very acute perspective of that aspect of that problem. It is very much as if there is the horizon and there is the vista of the entire universe. Ego becomes a telescope through which we are very specific assets of that universe dependent upon the degree of awareness. It determines the amount that can be seen through the telescope, whether it is diffuse, whether it is rose colored, or whether it is refracting light in a very distorted mechanism. What we practice and what we process ourselves to be able to do is look through the telescope at that aspect of this plane with clear and unobstructed vision, and that lesson become a part of this experience through the ego, which is that telescope viewing that specific event in this plane and taking from that the lesson that become part of the greater experience. Ego is a vehicle in which we experience identity from a very specific viewpoint. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। विजडम ऑफ सोलोमन, द ईगो asserts from Solomon speaks channel material. In many cases, in these planes of energy, ego represents identity. It gives it a separateness, a form which is essential to function in this plane. We have difficulty understanding the concept that we are all one, and we understood that we are all one, there would not be the lessons that need to be experienced. The ego gives us the identity to experience the lesson in terms of very specific viewpoint. It is as if we look at the situation through a very specific window. That frame in the window is our ego. It gives us the form to look through from a very acute perspective of that aspect of that problem. It is very much as if there is the horizon and there is the vista of the entire universe. Ego becomes a telescope through which we see very specific aspects of that universe. Dependent upon the degree of awareness, it determines the amount that can be seen through the telescope, whether it is diffused, whether it is rose colored, or whether it is refracting light in a very distorted mechanism. What we practice and what we process ourselves to be able to do look through that telescope at that aspect of this plane with clear and unobstructed vision, and that lesson become part of this experience through the ego, which is that telescope viewing that specific event in this plane and taking from that the lesson that becomes part of the greater experience. Ego is a vehicle in which we experience identity from a very specific viewpoint. आइए दोस्तों, इस हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सुलेमान की बुद्धि, चैनल सामग्री, सोलोमन स्पीक से अंश। ऊर्जा के इन स्तरों में कई मामलों में अहंकार पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह इसे एक अलगपन का रूप देता है जो इस स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है। हमें यह अवधारणा समझने में कठिनाई होती है कि हम सब एक हैं, और अगर हम यह समझ लें कि हम सब एक हैं तो हमें
ऐसा कोई सीख नहीं मिलेगी जिससे सीखने की जरूरत है। अहंकार हमें एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में पाठ का अनुभव करने की पहचान देता है। यह ऐसा है कि जैसे हम किसी स्थिति को एक बहुत ही विशिष्ट खिड़की से देखते हैं। खिड़की में वह फ्रेम हमारा अहंकार है। यह हमें उस समस्या के उस पहलू को बहुत ही तीखे दृष्टिकोण से देखने के रूप देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्षितिज है और पूरे ब्रह्मांड का दृश्य है। अहंकार एक दूरबीन बन जाता है जिसे जिसके माध्यम से हम उस ब्रह्मांड के बहुत ही विशिष्ट पहलुओं को देखते हैं। जागरूकता की डिग्री पर निर्भर करते हुए यह निर्धारित करता है कि दूरबीन के माध्यम से कितनी मात्रा देखी जा सकती है, चाहे वह बिखरी हुई हो, चाहे वह गुलाबी रंग की हो, या फिर वह बहुत विकृत तंत्र में प्रकाश को अपवित्रित कर कर रही हो। हम जो अभ्यास करते हैं और जो हम खुद को प्रक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं, वह है इस विमान के उस पहलू को स्पष्ट और निर्बाध दृष्टि से दूरबीन से देखना। और वह सबक अहंकार के माध्यम से इस अनुभव का हिस्सा बन जाता है जो इस विमान में विशिष्ट घटना को देखने वाली दूरबीन है। और उससे सबक लेना वह बड़े अनुभव का हिस्सा बन जाता है। अहंकार एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम एक विशिष्ट दृष्टिकोण से पहचान का अनुभव करते हैं। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सुलेमान की बुद्धि सोलोमन स्पीक से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री ऊर्जा के इन स्तरों में कई मामलों में अहंकार पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ इस अध्याय के माध्यम से पत्री समय में अहंकार के बारे में बता रहे हैं। यह इसे एक अलगपन का एक रूप देता है जो इस स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है। हमें यह अवधारणा समझने में कठिनाई होती है कि हम सब एक हैं, और अगर हम यह समझ लें कि हम सब एक हैं तो हमें ऐसा कोई सीख नहीं मिलेगी जिससे सीखने की जरूरत है। अहंकार हमें एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में पाठ का अनुभव करने की पहचान देता है। यह ऐसा है कि जैसे हम किसी स्थिति को बहुत ही विशिष्ट खिड़की से देखते हैं। खिड़की में वह फ्रेम हमारा अहंकार है। यह हमें उस समस्या के उस पहलू बहुत ही तीखे दृष्टिकोण से देखने का रूप देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्षितिज है और पूरे ब्रह्मांड का दृश्य है। अहंकार एक दूरबीन बन जाता है जिसके माध्यम से हम उस ब्रह्मांड के बहुत विशिष्ट पहलुओं को देखते हैं। जागरूकता की डिग्री पर निर्भर करते हुए यह निर्धारित करता है कि दूरबीन के माध्यम से कितनी मात्रा देखी जा सकती है, चाहे वह बिखरी हुई हो, चाहे वह गुलाबी रंग का हो, या फिर वह बहुत विकृत तंत्र में प्रकाश को पवित्रित कर रही हो। हम जो अभ्यास करते हैं और जो खुद को प्रक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं, वह इस विमान के उस पहलू को स्पष्ट और निर्बाध दृष्टि से दूरबीन से देखना। और वह सब अहंकार के माध्यम से इस अनुभव का हिस्सा बन जाता है जो इस विमान में विशिष्ट घटना को देखने वाली दूरबीन है। और उससे सबक लेना वह बड़े अनुभव का हिस्सा बन जाता है। अहंकार एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम एक विशिष्ट दृष्टिकोण से पहचान का अनुभव करते हैं। दोस्तों, पत्री सर ने में सुलेमान की बुद्धि के पिछले कई अध्याय के माध्यम से हमें बताते आए हैं। तो दोस्तों, सुलेमान स्पीच जो है, सोलोमन स्पीच जो पुस्तक है, बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ये अमेजन पर उपलब्ध है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इन चीजों को हमें समझने के लिए अगर हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमें अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। थैंक यू।